मेरा पहला जो जॉब था वो बैक स्टेज हेल्पर का था। और मैं बैक स्टेज हेल्पर के बतौर काम करने लगा। मैंने सारे बड़े डिजाइनर्स जो अभी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके कपड़े में आई वर्क विद देम, सब्यसाची, तलतल, रोहित बाल, मनीष, मैं सबके शो में बैक स्टेज हेल्पर रह चुका हूँ। इट इज एज इजी और एज डिफिकल्ट as the society creates. मेरी sexuality क्या है, who I sleep with is something so personal and it is such a small part of my personality. I don't ever feel the need to make it into an issue. I never had a epiphany एक दिन उठ के कि oh my god I like boys. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे कभी बोला नहीं गया था कि तुम लड़के हो तो तुम डॉल के साथ नहीं खेल सकते। इंसान ना सब कुछ झेल सकता है। To deal with your family's non-acceptance is very, very tough. तुमको बाहर वाले कुछ भी बोल देना फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारे पास अपनों का सपोर्ट हो। Best dressed celebrity. मलाइका. As a stylist, your views on Urfi Javed's fashion. I love it. मैंने recently एक वेब सीरीज देखी अभी, दिल दोस्ती डिलेमा। Yes. उसमें कोई आप ही के जैसा बंदा था, बड़ा स्टाइलिश, Well. एक्टिंग ऑल्सो। So I got confused कि एक्टर है डिजाइनर है। So By please profession, I'm a designer, of course, Okay. and I've been doing this for quite a few years. What happened actually was that I was doing costume for the show itself. और फिर हम लोग एक ना PPM के लिए वो प्री प्रोडक्शन मीटिंग होता है, उसके लिए हम लोग Amazon के ऑफिस गए। एंड मेरी जो डायरेक्टर थी डेबी, वो हमेशा से ही जोक करती रहती थी कि ये कैरेक्टर जो है बिल्कुल तुम्हारे लिए सूटेड है, तुम्हें करना चाहिए। एंड आई यूज्ड टू जोक अबाउट इट, सेइंग हाँ व्हेन यू पे मी मनी एंड आई विल डू इट एंड ऑल दिस। सो इट वाज जस्ट लाइक अ रनिंग जोक। लाइक प्रोडक्शन में भी लाइक मेरी जो ईपी मेरी फ्रेंड थी प्रणति, वो भी बोलती रहती थी, तो मुझे लगा तो जोक ही था। So PPM के बाद the Amazon guys saw me for the first time. Like they have never met me and I obviously was wearing something, I don't even remember, something big I guess. And then they actually specifically told the director and the production basically that why are we not getting Rick Roy to do this? And I didn't even know this. So they came back and again that conversation started and I started laughing. I was like, listen, it's whatever. Like, you know, मेरा काम तो yeah, and I said, designing let's, yeah, and I said that, yeah, but I basically asked them कि कौन कर रहा है बताओ, we have to make clothes. And the production was like, but you're doing it. And I was like, no, I'm not doing it. And then the producer came in and she said, no, listen, we are very seriously considering this. Will you be comfortable doing it? And I was like, it's not a big deal, I'll do it. And then they were like, they spoke to my manager, they spoke about money, and then I was like, okay, this is really serious. ये important है। अलग से पैसे दिए एक्टिंग के? 100%. तो मुझे लगा तो तभी तो प्रोफेशन हुआ ना। नहीं, मुझे लगा कि कहीं उसी में उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ओके। No. My manager is superb with it, and the producer. You got a good manager. Yeah. She's a very good manager, and also the thing is, we anyways knew somebody was getting cast for it. So my manager was like, if somebody is getting cast, then you have definitely kept money. Then if he is the actor, then just give him the money. So. अच्छा, पैसे भी मिल गए, एक्टिंग भी हो गई, but you know, you have designed costumes for biggies of Bollywood. नाम अक्षय कुमार, विद्या बालन, मलाइका अरोड़ा। जब खुद एक्टिंग करनी थी, तब जो कॉस्ट्यूम पहनना था, उसके बारे में कैसे सोचा कि अब तो मतलब मुझे खुद वहां पे कैमरा फेस करना है, तो क्या सोचा क्या पहनूंगा और वो कैसे फाइनल किया? Actually, to be very honest, वो कॉस्ट्यूम ऑलरेडी डिसाइडेड ही था। वो एक्टर मैं लास्ट में बना, लेकिन कपड़े तो प्री के टाइम से बने हुए थे। You only decided that? Yeah, like Okay. as a designer for the character, we had already designed the looks. Got it. The looks just got made in my size and that's it. Otherwise, so this like the costume conversation बहुत पहले से होता है। So हमारे पास वो designs वगैरह बहुत पहले से बने हुए थे। It's just that actor lock नहीं हुआ था और फिर when I became the actor, then I just wore those clothes and I just made them to my size and that's आपको लगा नहीं है मुझे एक्टिंग करनी है, थोड़े चेंज करता हूँ यार, थोड़े और मतलब कुछ? नहीं, एक्चुअली एज द कैरेक्टर जो था, फॉर दैट कैरेक्टर दीज क्लोथ्स वर परफेक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट कि कपड़े भी मेरे ही हैं, डिजाइन भी मेरी है। आई डिडंट थिंक दैट फॉर मी आई नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंट। फॉर मी इट वाज लाइक ओके, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज व्हाट इट नीड्स टू लुक लाइक एंड I just played the character and pretty much it. Of course, I wore the crown. That was my own. जब हम लोग किसी और के लिए कर रहे थे तो वो crown नहीं था, तो मुझे बस crown पहनना था। वहाँ you added कि अच्छा बेटा मैं कर रहा हूँ। I was like okay, some Rick Roy तो होना चाहिए थोड़े, मतलब I just wore the crown. अच्छा, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं एक्टर्स ने क्या पहना है।
हाँ, मतलब ट्रेंड्स चल जाते हैं एंड यू नो Yes. डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती हैं Absolutely. एंड यू नो आई एम वेयरिंग द सेम शर्ट जो अक्षय कुमार ने उस फिल्म में Absolutely. पहनी थी. सो हाउ difficult, how challenging is to design, you know, when you are designing it for Akshay Kumar, first film, Yeah, I think my you first film designed was for with Akshay Kumar. तो in general, how difficult it is? और क्या वो लोग आसानी से they agree कि अच्छा ठीक है भाई रिक ने बना दिया, will wear it, या अब नखरे दिखाते हैं, नहीं यार नखरे, कपड़ों में सबके नखरे होते हैं, हम भी होंगे, नहीं यार ये थोड़ा सा टाइट है, नहीं यार, अच्छा सेल्समैन बोलेगा अरे दीदी ये तो आप पे खिल रहा है, मतलब इसमें तो आप शाहरुख खान लग रहे हो. तो ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए दो चीजें होती है अभी. आई वुड से इन द मॉडर्न सिनेरियो इन फिल्म्स इट्स चेंज्ड अ लॉट. पहले क्या होता था कि हर एक फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता था हु यूज्ड टू कम एंड डिजाइन द लुक्स फॉर दोज कैरेक्टर्स, यू नो. पर अभी क्या होता है कि लॉट ऑफ एक्टर्स ब्रिंग देयर ओन पर्सनल स्टाइलिस्ट. सो डिफरेंस ये होता है कि जब आप एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हायर करते हो एक फिल्म के लिए, उसका फोकस होता है कॉस्ट्यूम फॉर द कैरेक्टर. कि तुम अक्षय कुमार हो या तुम शाहरुख खान हो, that didn't matter. What matters कि Character. अक्षय आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. Exactly, yes. And a lot of actors are very good with it. A lot of actors come into the set and they become the character, you know, which is the right process of doing it. But a lot of times अभी क्या होता है कि comfort की वजह से actors bring their own people. तो क्या होता है कि अगर एक्टर अपना स्टाइलिस्ट साथ में लेके आता है, स्टाइलिस्ट को तो एक्टर लेके आया है, तो स्टाइलिस्ट तो सुनेगा एक्टर की ज्यादा ना. तो उसमें ना अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मैंने देखा भी है एंड इट्स अ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन, लेस कैरेक्टर एंड मोर पर्सनल स्टाइल बिकम्स अ प्रॉब्लम, यू नो. मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सनल स्टाइलिस्ट टू एनीबडी. मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, रहा हूँ, रहूंगा. मुझे टिप्स चाहिए लेकिन आपसे. जरूर. अच्छा मलाइका अरोड़ा को भी यू हैव स्टाइल, हाउ Oh वाज my दैट God, yes, of एक्सपीरियंस? course. क्योंकि उनके कपड़े, उनका स्टाइल टॉक ऑफ द टाउन, डेली पैप्स. Malaika has never been work for me, to be very, very honest. I very proudly say this. I am literally a Malaika protege. Like, I knew Malaika when I was 17 years old. I knew nothing in the business. मेरी जिंदगी का जो पहला दिन था काम का, उस दिन मैं मलाइका से मिला, और उस दिन से आज तक, अभी तो मैं काम भी नहीं करता मलाइका के साथ उतना ज़्यादा, बट Malaika has been literally my mentor, my friend, philosopher, guide. Like even if today there are decisions that I need guidance from, she is like, I can call her, like I call her. She is that important in my life. So Malaika, काम तो I've never considered Malaika as work. For me, Malaika, and forget Malaika, her whole family. Malaika, her sister Amrita, Yes. her mother Joyce auntie, Anil, all of them have really been family. You know, the first time I felt sick, Malaika took me to the doctor, you know. So it's like that. That's my relationship with Malaika. So Malaika was never work. Whatever I know about work came from Malaika. So there was never a problem because she has literally trained me into got like it, got the it. perfect person for her, you know. So she trained me, you know, from the first day at work. She literally took me under her wing and she has taught me about bodies, understanding style, understanding what kind of a body needs what kind of a silhouette, and I developed on that. So I mean, she's pretty much my teacher more than anything else. And I mean, I genuinely, and I don't say it out of like any whatever, I genuinely wouldn't be here if I didn't have the training that I got from Malaika, to be very honest. अब I'll talk about from where you came, about Rick. Where are you from? I'm from Calcutta. बचपन में what you thought कि करना क्या है, बनना क्या है? मैं ना जिंदगी भर में अभी भी मुझे लगता है मैं बहुत ही स्पेस कडेट टाइप का इंसान हूँ. मैंने जिंदगी में कभी कुछ उतना प्लान नहीं किया था. Okay. मुझे लगता है कि जो होना है वो हो ही जाएगा. आई जस्ट डू द वर्क. एंड मैं जेन्युइनली अभी भी मैं उसी सॉर्ट ऑफ हेड स्पेस से काम करता हूँ कि people feel that I'm not being ambitious enough or I'm not pushing enough, but मुझे लगता है कि यार ठीक है, मैं जो है वो हो जाएगा टाइप. So even as a kid, मुझे आर्टिस्टिक चीज़ों से बहुत लगाव था. मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था.
एंड मैं गाना गवा लूंगा फिर ये जब भी कोई डांस देखिए मैं गा तो दूंगा लेकिन कितना अच्छा है उसकी गारंटी मैं नहीं ऑडियंस डिसाइड कर लेगी, कमेंट्स आ जाएंगे फिर। या एग्जैक्टली, क्योंकि एक्टिंग तो करिए, गाना मत गाओ इसके आगे। तो मैं आर्टिस्टिक था बचपन से और उस चीज को बढ़ावा भी दिया जाता था घर पे काफी ज्यादा। मेरी मॉम एंड डैड क्या करते थे वो? So my dad was a government servant, my mom was a homemaker. Very basic middle class upbringing, very middle class family. मेरी बहन है छोटी मुझसे। छोटी बहन है, okay. But she is completely away from all of this. She is in IT and all that stuff. So how you got the first project? कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद कुछ स्ट्रगल हुआ? नहीं, मेरा सी आई टोल्ड यू दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी। सो कॉलेज मेरा खत्म नहीं हुआ था, मेरा पहला जॉब जो था वो डिजाइनर के बतौर तो था भी नहीं। मेरा पहला जो जॉब था वो बैक स्टेज हेल्पर का था। तो एक अभी तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उस टाइम पे भी फ्रेंड ही हुआ करती थी, तो वाबीज वच्छा मेहता करके एक कोरियोग्राफर हैं, अभी तो बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर है। शी यूज्ड टू बी द बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल दीज बिग फैशन शोज। एंड वो हमारे कॉलेज सीनियर्स के फैशन शो के लिए आई थी और मैं था ही थोड़ा सा यू नो एक्स्ट्रा आई थिंक। सो शी मेट मी एंड फिर उसने मुझे बोला कि विल यू डू दिस बैक स्टेज हेल्पिंग एज अ पार्ट टाइम थिंग, लाइक अ फ्रीलांस थिंग। मैंने कहा हाँ पैसे मिलेंगे, तो उसने कहा हाँ। सो फिर वो मुझे बुलाने लगी और मैं बैक स्टेज हेल्पर के बतौर काम करने लगा। मैंने सारे बड़े डिजाइनर्स जो अभी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके कपड़े में यू नो आई वर्क विद देम, they were I have backstage help for all of them, Sabyasachi, Tarun Talyani, Rohit Bal, Manish, मैं सबके शो में बैकस्टेज हेल्पर रह चुका हूँ। ओके, एंड द फर्स्ट फिल्म अक्षय कुमार वाली वो कैसे मिली? ये जो जॉब किया पूरा का पूरा कितना टाइम किया? हाउ यू गॉट दैट? See, everything is drama in my life. So अक्षय की जो फिल्म थी जोकर, वो शिरीष की फिल्म थी। Yes, शिरीष फाराज हस्बैंड। Yes. एंड मैं फारा को जानता था मलाइका के थ्रू, क्योंकि मलाइका और फारा बहुत क्लोज हैं और मैं बचपन से like I've literally grown up in front of Farah and Malla and all that. So उसकी फिल्म में कोई और डिजाइनर थे जिनके साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, तो उन लोग शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में और मुझे एक रात फारा का कॉल आया और फारा ने कहा कि देख शिरीष की फिल्म में कुछ प्रॉब्लम है कपड़ों को लेके, तू बात कर ले उसके साथ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। Then Shirish's producer called me and said कि so tomorrow you have to come to Chandigarh and meet Shirish. I said, I still was like, okay, you know. I went and met Shirish and I realized this film is already on, they are shooting. So Shirish ने मुझे बोला कि देखो भैया अभी कल से काम पे लग जाओ, and I was like, are you serious? I might not be able to do it. He's like, देख एक ने तो गड़बड़ करके रखा हुआ है, ऑलरेडी हम झेल रहे हैं, तू गड़बड़ करेगा तुझे भी निकाल देंगे, किसी तीसरे को लेके आएंगे, but give it a shot, you know, and if it works, it works. Then I met Akshay. I told Akshay also, and I had never met Akshay Kumar, and I said, Akshay, I've never done this. He said, अरे यार, it's just clothes, you'll manage, just do it. कपड़े जो है बना ही लेगा। Yeah, he's like exactly. He literally told me, he's like, just clothes, yeah, you'll figure it out. चल, और अगर if you don't make it, if it's really bad, we'll throw you out. चलो. And he literally like said that. अच्छा, अब now coming to a very important and sensible topic, जो कि आपसे ही backstage behind the camera बात करके मुझे realize हुआ कि we should talk about that very responsibly. About the sexuality, you are very open about that. Yes. मैंने आपके बड़े सारे interviews पढ़े. You speak about that. Yes. You talk about that. And मैं एक line पढ़ रहा था where you said कि if someone is straight, तो वो जाके बोलता है क्या, चिल्लाता है क्या कि I'm straight? Exactly. If someone is a gay, तो वो जाके नहीं बोलता है. हाँ. So when did you discovered your sexuality कि I have an inclination towards? देखिए you know generally क्या होता है queerness or any sort of sexuality is you know it is as easy or as difficult as the society creates. Yes, you know, to be honest. जैसे मैं आपने ही बोला और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जो स्ट्रेट होता है उसको कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आप आके बोले कि मॉम डैड आई एम स्ट्रेट, कभी नहीं होती, बिकॉज दैट्स द मेजॉरिटी, इट्स गिवन कि यही है, दिस इज द नॉर्म. सो द सेम वे बिकॉज
अभी तो इतनी एजुकेशन हो गई है लोगों के पास, सबको Education हो पता। गई, फिल्में आ रही हैं, बहुत बहुत या अच्छे अभी तरीके से basically समझाने की कोशिश हो मुझे ये रही है। लगता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, who I sleep with is something so personal and it is such a small part of my personality. I don't ever feel the need to make it into an issue. Yes, there is an issue because there is still lack of acceptance in Yes. certain spheres of this thing. बट मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं आके लोगों को बोलूं कि भैया मैं गे हूँ। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे लगता भी नहीं है कि इसकी ज़रूरत है, you know? Yes. इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा श्रेय मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगा एंड बिकॉज यू नो आई ग्रू अप गे, आई नेवर हैड अ एपिफनी एक दिन उठ के कि ओ माय गॉड आई लाइक बॉयज, Okay. इट नेवर हैपेंड टू मी। From the I childhood? always, yeah, from childhood I grew up and क्या होता है कि अगर आप ऐसे घर में होते हो या आपके घर का सिचुएशन ऐसा है जहां आपको बताया जाए, पुश किया जाए कि अ बॉय नीड्स टू वर्क लाइक दिस और बी लाइक दिस एंड अ गर्ल नीड्स टू बी लाइक दिस, तो क्या होता है बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती है ना, उसको लगता है कि अच्छा मुझे बोला जा रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, Yes. पर मेरे में तो ऐसा नहीं है, यानी कुछ गलत है मेरे साथ। दैट्स हाउ इट कम्स फ्रॉम। Yes, लेकिन yes. मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे कभी बोला नहीं गया था कि तुम लड़के हो तो तुम डॉल के साथ नहीं खेल सकते, मुझे कभी ये बोला नहीं गया था कि तुम लड़के हो तो तुम नाच क्यों रहे हो, मुझे कभी नहीं बोला गया था तुम लड़के हो तो तुम गाना क्यों गा रहे हो। मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें मिली नहीं थी, मुझे बताया नहीं गया था इन सब चीज़ों का। तो अगर मुझे कपड़े बनाने का शौक था तो मेरी जो कज़न थी उसका एक डॉल था, वो एक बार लेके आई थी और मेरी मम्मी ने फिर मुझे बाद में खरीद के भी दिया था। मैं कपड़े बनाता था डॉल्स के लिए, मुझे बड़ा मज़ा आता था और मुझे कभी ये बोला नहीं गया था कि ये गलत है। ओके, मैं फुटबॉल प्लेयर था, मैं बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर था, क्योंकि जनरली जो लड़के होते हैं उनको फुटबॉल खेलना होता है, जो लड़कियां होती हैं उनको डॉल से खेलना होता है। मैं फुटबॉल से भी खेल रहा था, मैं डॉल से भी खेल रहा था और मुझे कभी भी मेरे घर से ऐसा महसूस नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स से या उन्होंने कभी मुझे ये महसूस कराया नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, यू नो। मुझे नहीं, मेरे मम्मी पापा को शायद ये समझ नहीं थी कि व्हाट इज गे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो वो जनरेशन में सबको उतना पता होता Yes. नहीं था। बट उनको मेरे डिफरेंट होने से, अलग दूसरों से अलग होने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरे बच्चे को ऐसा ही बनना पड़ेगा, यू नो। सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, दैट गेव मी दिस, आई थिंक द माइंड स्पेस, यू नो, क्योंकि बच्चा वही बनता है जो तुमको बनाया जाता है। हम लोगों को तो ब्लेम कर देते कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये कोई नहीं देखता कि उसकी सर्कमस्टेंसेस कैसी थी। मेरी सर्कमस्टेंसेस थैंक गॉड वर वेरी सपोर्टिव। सो बचपन से ही मेरा ये था कि आई वाज स्पेशल एंड अगर आपका वो माइंडसेट, एटलीस्ट मेरे लिए क्या हुआ, वो माइंडसेट रियली वर्कड फॉर मी, यू नो, लाइक इट हेल्प्ड मी कोप विथ द इश्यूज दैट क्रॉप्ड अप इन लाइफ. I did not let those issues affect me at all, you know. Yeah, that's how I grew up, you know, gay, I guess. I think we were discussing this only कि आज की डेट में ऑनेस्टली अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, सामने आते हो, तो पीपल लव दैट फैक्ट. Yes, और 100%. आपको लगता है कि अब इस दौर में जहां हम दुनिया भर की फिल्में भी बन चुकी हैं, दुनिया भर के कैंपेन्स होते हैं, स्पेशल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, सो यू फील कि चलो आप यू आर लकी कि Yes. आपके पेरेंट्स ऐसे थे Yes. कि उन्होंने आपको कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया, तो यू वर नेवर हर्ट. आप Not by my parents. Not by- My parents never बट hurt नहीं, me. बट लेकिन यू सेड ना कि मैं ऐसा ही था, तो कोई Yeah. मेरा मजाक भी उड़ाता था तो Yeah, मुझे लगता था yeah. मेरा मजाक उड़ा. Yeah. तो आपने वो चीज फेस नहीं की Yes. जो शायद बहुत सारे लोग Yes. फेस करते हैं. Yes. तो जी. उनके लिए यू वांट टू से समथिंग कि भाई अगर कोई मजाक भी उड़ा रहा है या कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो हाउ टू डील विद दैट, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डील नहीं कर पाते. Yes, yes. It's देखिए, किसी को भी ना, it's not only about being gay or queerness or anything. मुझे लगता है कि किसी को भी, and especially kids, you know, kids can be very cruel and everything comes from there. I think
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमको सिखाया जाए कि किसी को छोटा महसूस मत कराओ किसी भी वजह से, यू नो. I, you know, it's very I mean it's a very like sensitive thing for me. I know people who have been bullied, जिनको बहुत सारी tough situations face करनी पड़ी. But the worst one is from your family. इंसान ना सब कुछ झेल सकता है. To deal with your family's non-acceptance is very very tough. तुमको बाहर वाले कुछ भी बोल देना फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारे पास अपनों का सपोर्ट हो, और वो सपोर्ट जब आपके पास नहीं होता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मुझे लगता है कि मोर देन people, more than the queer kids, I think it's very important for the parents to understand that being gay, it has no standing in who the person is. You know, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, वो किसके साथ सेक्स कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके मम्मी पापा ने आपको पूछा नहीं ना कि आप लड़के से सेक्स करते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप लड़के से सेक्स करते हैं आप बुरे हो जाते. क्या आप जो हैं वही हैं ना? Yes. ये चीज़ मुझे लगता है पेरेंट्स को समझना चाहिए. डिफ़िकल्ट है. मैं पेरेंट्स का ये डिलेमा भी समझ सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देखिए हम सब सोसाइटी में रहते हैं, हमको सिखाया जाता है कि ये सही है ये गलत है, यू नो. बट दिस इज़ द वन थिंग जो हमको सिखाया गया है कि मे बी नॉर्मल नहीं है. इट्स टाइम कि हम लोग समझें इस चीज़ को कि व्हाट इज़ नॉर्मल. You know, if God has created me this way, you know, clearly there's a plan for it. Then who is the society to tell me this is normal or this is not normal? वो एक चीज़ है. मैं honestly आपको ये बोल सकता हूँ कि मुझे ना नहीं पता कि क्या कर सकते हैं इंसान कि जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइनली नहीं बता सकता आपको इसका कोई सोल्यूशन, क्योंकि यार मैंने नहीं फेस किया है. मैं समझ सकता हूँ, आई कैन एम्पथाइज विद इट, बट आई कैन नॉट टेल यू सोल्यूशन. क्योंकि अगर मेरे साथ हुआ होता, अगर मैंने कुछ किया होता, आई कैन ऑनेस्टली से, और मैं डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहता. देखिए ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, बोलेंगे अरे यू बी स्ट्रॉन्ग, यू बी दिस एंड ऑल. नहीं हो सकता है. जो इंसान झेलता है ना उसी को पता होता है, और मैंने वो झेला नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो मेरे पास ऐसा कोई ज्ञानी कोट नहीं है जो मैं किसी को दे सकता हूँ. आई कैन ओनली से दैट फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एज अ कम्युनिटी ऑफ क्वेयर पीपल. It's very important that you find a support system and you find people who are your people. ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि माँ बाप सपोर्ट करें, क्योंकि उन लोगों को भी बेचारे को समझ में नहीं आता होगा, बहुतों को. तो आपको ऐसे लोग ढूंढो जो आपको समझ सके, जिनसे आप बोल सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. यू नो, क्या होता है ना कि दिस इज माई फिलोसफी. मुझे लगता है कि सबकी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं. वो ऐसा एक बंदा ढूंढता है जिसको उसको लगता है कि अगर इसको मैं अगर परेशान करूँ ना तो मेरी परेशानियाँ कम हो जाएंगी. एंड मोस्ट पीपल हु बुली गे मैन, एंड आई एम सेइंग इट, are very frustrated. They have some shit going on in their head, so they pick on somebody who's marginalized and basically start attacking that person to feel good about themselves. Only the weak prey on other weak people, I believe. If you have strength, if you have any kind of you know, stability about who you are, you will never need to make someone feel small. You know, you will help people grow. You will not want to make people feel small. वही लोग हैं जिनके अपने अंदर उनको अपनी खामियां दिखती हैं, वो दूसरों की खामियां ढूंढते हैं. अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ही फैंटास्टिक हैं, आप कभी किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे. ये चीज़, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो सोचिए फेमस है. मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एक वॉइस है. आई एम सिटिंग विथ यू राइट नाउ एंड यू आर आस्किंग मी इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू बी एबल टू गेट दिस प्लेटफॉर्म, जो सबके पास नहीं होता. तो मैं सीरियसली ये चीज़ के बारे में चाहता हूँ कि लोग बात करें, लोग समझें कि इट्स नॉट सम हवा, ऐसा कुछ है नहीं. यू नो, आई मीन
it's as normal as it's all over. Like, it's a joke, you know. There are like gay penguins, there are gay animals. It's all kinds of things. It keeps coming on the internet. You will see it also. So nature has created all of us the way we are. Yes. You know, it's just your small-mindedness that has made you believe that this is right and this is wrong. You know. So I think it's time कि हम लोग इस चीज को अपने दिमाग से निकालें. और इसके लिए आप सही बोल रहे हैं, जरूरी है कि जिनकी बात सुनी जाती है वो ये बात सुनाएं, you know, जो कि हो भी रहा है, जो हो रहा है, exactly, वो हो रहा है, जो हो रहा है. अंडरस्टैंडिंग आ रही है लोगों में, लोग समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो कि ना शायद हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है उन बच्चों को हेल्प करेगा. चलिए अब कुछ फन और ट्रिकी क्वेश्चंस. 100%. एंड यू आर वेरी ब्लंट, सो आई एम ओके. फर्स्ट किस. I was 16. लेट हो गया. I was a very good kid. 16, yes. ओके. फर्स्ट सेक्स. I think 17. एक साल लगा किस से सेक्स. Yeah, well, you know, I was traveling to Bombay. I had a lot on my mind. I was trying to get a career. So once that kind of was getting settled, then I was like, now we can have fun. Okay. Worst dressed celebrity of Bollywood? You know, you see there is Divya standing over there. I will not be able to answer it because she is already like given me brief saying, keep your mouth shut. Best dressed celebrity? Malaika. As a stylist, your views on Urfi Javed's fashion? I love it. I love Urfi, and just so you know, I have loved Urfi because before it became cool to like Urfi. Like, I used to talk about Urfi so much, and a lot of my friends used to make a face and like, oh god, she's so tacky and all. What I love about Urfi is that Urfi is one of those very few people who has a point of view. It Yes. might be good, it might be bad, Yes, you might yes. agree, you might disagree, but she always had a point Yes. of view, and that is a quality which I love about myself. You might like me, you might dislike me, but you can never say that I am blah. I always will have a point of view, and that's what I like about fashion. You know, everybody doesn't have to like everything, but there has to be a point of view, and Urfi had such a strong point of view since day one. You know, अभी तो बहुत cool हो गया उर्फी के बारे में बात करना, लेकिन I have spoken about Urfi way before Urfi was famous. You know, like somebody had once sent me something that she had made, and I thought it was genius. बहुत साल पहले, like genuinely. Then, तो of course, you know, the Abu Sandeep campaign happened, and everybody now is like, oh, Urfi is so cool. So yeah, I think she's very interesting as a person. About everything, I think. Kapde, sex, Yes. sexuality, 100%. and everything. And it was so lovely talking to you. मुझे लगता है It हमने 1 घंटे was. से ज़्यादा बात कर ली, and अभी भी लग रहा है कि और बात हो सकती है. So we'll keep it for the next time. 100%. There will be a It part was 2 of really this nice interview for talking to sure. you. जिसमें you wear what you want. Yeah, ठीक है? Divya, can you hear that? हाँ. जो आप पहनना चाहते No, हो, actually, to आप be वो very पहनना. honest, I wear these clothes, and हाँ. at work I generally wear these clothes, but you know, when I'm going out, I wear very outrageous clothes. बनता भी because- है, मतलब वो. And that is also, You are a know, design. I मतलब also- पता लगना yeah, चाहिए. and Everyone also should मुझे ask लगता कि है, कौन है. Also, you know, the thing is, मुझे लगता है कि हर इंसान को ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, Yes. which you express through clothes. Otherwise, आप ये क्यों पहन रहे हैं, वो ये क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि Yes. हम सभी चाहते हैं कि we express who we are through our clothes. And I am a very big personality, so I express that with very big clothes. And guys, इस big personality के बारे में अब इस interview में it's everything from the childhood to career Yes, to we pretty much covered a ABC. lot. Pretty much covered. बाकी हम जो बचा है next time के लिए रखते हैं. Thank you so much. It Thank was you so so lovely much. talking It to was you. so nice talking to you. Same here. Thanks.